Good morning, students. I'm Rajni Gehlot, PGT English from Bhaurao Devras Saraswati Vidya Mandir. Today I am going to teach you the chapter Indigo from Flamingo. Okay, this chapter is written by Louis Fisher. First of all, I am going to tell you about the author. Who was Louis Fisher? Louis Fisher was born on 29 February 1896 in Philadelphia, Pennsylvania, USA. First he worked as a school teacher, then he served as a volunteer in British Army during the First World War, and then he made a career as a journalist and wrote for the New York Times. तो इनका जन्म फिलाडेल्फिया पेनिनसुला में यूएसए में हुआ था. फर्स्ट ऑफ ऑल ही वर्कड एज अ स्कूल टीचर. उन्होंने एज ए स्कूल टीचर काम किया. देन ही सर्व्ड एज अ वॉलंटियर इन ब्रिटिश आर्मी. फिर ब्रिटिश आर्मी में इन्होंने एज अ वॉलंटियर सर्विंग सेवा की ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, एंड देन ही मेड अ कैरियर एज अ जर्नलिस्ट एंड रोट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स. उसके बाद उन्होंने एज ए जर्नलिस्ट वर्क किया और उन्होंने किसके लिए लिखा? न्यूयॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यू एंड फॉर यूरोपियन एंड एशियन पब्लिकेशन. एंड एज अ जर्नलिस्ट ही लिव्ड थ्रू एंड रिपोर्टेड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर. और एज अ जर्नलिस्ट उन्होंने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की भी रिपोर्ट ली. ही वॉज अ जूइश अमेरिकन हु वॉज अ ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी. ही वॉज अ जूइश बट ही वॉज इन्फ्लुएंस्ड बाय गांधी जी वेरी मच. Use of non-violence and spiritualism as political tools. He wrote highly acclaimed books on Gandhiji and Lenin. He died at the age of 73 on 15 January 1917, Princeton, New Jersey, USA. So he was impressed Gandhiji very much and due to his non-violence. And now I am going to tell you some important characters of the chapter. First is Gandhiji. Gandhiji, a prominent leader of India. At that time, he was a prominent leader of India who is known as a father of the nation. Second main character of this chapter is Rajkumar Shukla. He was a poor peasant, but resolute peasant of Champaran. He was poor, emaciated, but resolute peasant of Champaran. Peasant means a farmer, sharecropper of Champaran. He was very resolute and he was very determined. Why he was determined, we came to know through this chapter. Okay. Next one is J.B. Kriplani. J.B. Kriplani was a professor of arts colleges Muzaffarnagar in Muzaffarpur. And third one is Malkani. Malkani was a government school teacher. Both belong to the teaching, but J.B. Kriplani is a professor of arts college in Muzaffarpur, and second one Malkani is a government teacher in a school, primary teacher in a school. And next is Edward Gate, the lieutenant government. And next one Mahadev Desai and Narhari Parikh. He was also volunteer teacher who came during this time. Kasturba Gandhi's wife, Devdas Gandhiji's youngest son. All are these characters of the chapters. Okay, now firstly I want to tell you the summary of this chapter about this story. What is the story? The story describes Gandhiji's struggle for the poor peasants of Champaran. जो कहानी है, गांधी जी जो है चंपारण के जो पुअर पीसेंट्स थे, शेयर क्रॉपर्स थे, उनके स्ट्रगल को डिस्क्राइब करते हैं. इन दोज डेज मतलब गांधी जी ने उन्हें न्याय दिलाने के लिए क्या क्या स्ट्रगल्स किए थे. इन दोज डेज मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट ओन्ड बाय इंग्लिशमैन एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स. उस समय एक एग्रीमेंट था. क्या था कि मोस्ट ऑफ द अरेबल लैंड इन चंपारण डिस्ट्रिक्ट की जितने भी उपजाऊ जमीन होती थी वॉज डिवाइडेड इनटू लार्ज स्टेट. बड़े बड़े स्टेट में उसको डिवाइड कर दिया था और जिसके ऑनर कौन थे? इंग्लिशमैन थे. एंड वर्क बाय इंडियन टेनेंट्स. और उस लैंड पर जो थे इंडियन टेनेंट्स काम करते थे, मतलब एज अ लेबर इंडियन उस पर वर्क करते थे. द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो. एट दैट टाइम Indigo was the chief commercial at that time. It was very
profitable. The landlords compelled all tenants to plant 15% of their indigo and surrender the entire indigo harvest rent. So what was the injustice with these tenants? क्या injustice था इनके साथ कि जो landlords थे they compelled all tenants to plant 15% of their indigo and surrender the entire indigo harvest rent. कि जो वो लोग जो काम करते थे, मीन्स ये पूरी लैंड है, ठीक है, पीस ऑफ द लैंड विच द ओनर ऑफ द लैंड आर इंग्लिशमैन. सो व्हाट डिड दे डू, क्या करते थे, जो 15% है इस लैंड का 15% पार्ट जो होता था वो टेनेंट को दे देते थे. इंडियन शेयर क्रॉपर्स जो थे, जो किसान थे, उनको 15 पार्ट दे देते थे और उसे बोलते, और उसके बाद ये पार्ट तो उनका हो गया एज अ रेंट. दे फोर्स देम, दे कंपेल्ड देम टू ग्रो इंडिगो हार्वेस्ट. और उस जमीन पर, उस 50% जमीन पर उनको फोर्स करते थे कि उस पर उन्हें इंडिगो फसल उगानी है. अब इंडिगो बाकी ज़मीन पर वो क्यों नहीं कराते थे, क्योंकि इंडिगो से जो ज़मीन होती थी वो बंजर हो जाती थी, ठीक है, फॉर अ लॉन्ग टाइम. दैट्स वाई द 15% लैंड विच वॉज गिवन टू द शेयर कॉपर्स, दे फोर्स देम टू ग्रो इंडिगो. और उसके बाद क्या होता था, वो जो इंडिगो फसल होती थी उसका एंटायर पार्ट्स, सारा का सारा जो इंडिगो होती थी फसल, उसको वो एज अ रेंट खुद ले लेते थे. तो इसमें उनके लिए क्या बचा, कुछ भी नहीं. वो मेहनत भी करते थे, नाम के लिए ज़मीन उनकी थी, लेकिन फसल वो सारी की सारी उनको दे देती थी. दिस वॉज डन बाय अ लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट. और ये जो था काफ़ी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट था, काफ़ी समय से ऐसे ही चलता रहा. गांधी जी स्ट्रगल फॉर द पुअर पीसेंट्स ऑफ चंपारण. गांधी जी ने उन गरीब किसानों के, चंपारण के जो गरीब किसान थे, उनके लिए क्या स्ट्रगल किया. द ब्रिटिश डिड नॉट नीड द इंडिगो क्रॉप एनी मोर व्हेन जर्मनी डेवलप्ड सिंथेटिक इंडिगो. अब जो ब्रिटिशर्स होते थे बहुत ज़्यादा चालाक होते थे, उन्हें ये पता चल गया कि जर्मनी ने सिंथेटिक इंडिगो डेवलप कर ली है. तो दे केम टू नो अबाउट दिस, बट द पीसेंट डिड नॉट नो अबाउट द सिंथेटिक इंडिगो. सो दे मेक अ प्रॉफिट बाय इट. उन्होंने उससे भी प्रॉफिट कमाने की कोशिश की. जस्ट टू रिलीज द पीसेंट्स फ्रॉम द 15% एग्रीमेंट, दे डिमांडेड कंपनसेशन. सम इलिटरेट पीसेंट्स एग्रीड बट द अदर्स रिफ्यूज्ड. उन्होंने क्या किया, उसका भी फ़ायदा उठाने के लिए उन्होंने किसानों से कहा कि हम आपको इस 15% कॉन्ट्रैक्ट, जो ये लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट है, इससे आपको रिलीज़ कर देंगे. मतलब वो फ़ायदा, उन्होंने ये नहीं बताया कि हाँ सिंथेटिक इंडिगो आ गई इसलिए अब इसकी ज़रूरत नहीं है हमें, अब तुम फ्री हो, अपनी मन की फसल उसमें उगा सकते हो. उन्होंने क्या कहा कि हम तुम्हें फ्री कर देंगे इंडिगो से, तुम जो चाहे वो फसल अपनी ज़मीन में ग्रो करना, बट उसके लिए हमें कंपनसेशन देना पड़ेगा. बदले में उन्होंने उनसे पैसा मांगा इस चीज़ से, जबकि ये इलीगल था. तो उनमें से जो इलिटरेट पीसेंट्स थे, जो बिल्कुल अनपढ़ किसान थे, वो तो एग्रीड हो गए, खुश हो गए उन्हें तो कि हाँ आखिर हमें इस चीज़ से छुटकारा मिला इंडिगो से. बट अदर्स रिफ्यूज, लेकिन दूसरों ने उससे मना कर दिया. वन ऑफ द शेयर क्रॉपर्स नेम राजकुमार शुक्ला मेट गांधी. और उनमें से ही जिन्होंने मना किया, उनमें से ही एक पीसेंट थे राजकुमार शुक्ला. सो मेट गांधी जी इन दिस रिगार्ड. तो वो गांधी जी से इसी रिगार्डिंग मिलते हैं. एंड कंपेलिंग टू विजिट चंपारण बिकॉज ऑफ द लॉन्ग टर्म इनजस्टिस ऑफ लैंडलॉर्ड्स. और वो गांधी जी को फोर्स करते हैं अपने साथ चंपारण चलने के लिए, क्योंकि चंपारण में जो पीसेंट्स के साथ, जो शेयर क्रॉपर्स के साथ जो इनजस्टिस हो रहा था, उनके लिए वो न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं. सो बोथ बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार. दोनों एक साथ पटना के लिए जो ट्रेन थी उसमें बोर्ड हो जाते हैं, यानी चढ़ जाते हैं. फ्रॉम देयर शुक्ला led him to the house of a lawyer named राजेंद्र प्रसाद. यहाँ से सबसे पहले राजकुमार शुक्ला उन्हें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए थे. डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद was a prominent lawyer at that time. He was not a president at that time,
ही वॉज अ लॉयर, उस समय वो एक फेमस लॉयर थे। गांधीजी's arrival and the nature of his mission spread like a wildfire, एक जंगल में आग की तरह एक खबर फैल गई गांधी जी के वहाँ पहुँचने की कि हालांकि गांधी जी वॉज स्ट्रेंजर for the people of the Champaran, for the peasants of the Champaran, but they came to the mission of Mahatma Gandhi. Why did they come here? So many lawyers and peasants groups came in large to support गांधी जी। बहुत सारे lawyers और जो peasants थे वो गांधी जी की support करने के लिए आए। गांधी जी rebuked them for collecting big fee from the sharecroppers. He stresses on concealing as this would give the peasants enough confidence to fight their। गांधी जी ने वहाँ के वकीलों को इंडियन पीसेंट से फीस लेने के लिए, इस केस के सिलसिले में फ़ीस लेने के लिए बहुत डांटा और उन किसानों को समझाया कि इतनी सी बात के लिए हमें कोर्ट जाने की तो ज़रूरत ही नहीं है, अगर हम चाहें तो इसे अपने बेस पर इस मसले को हल कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, इससे आगे का मैं आपको कल पढ़ाऊँगी। थैंक यू स्टूडेंट्स।